Hello students, this is the chapter number 3, Poverty as a Challenge. This is your economics book and page number 31. Today we will read about the poverty line. So let's see. At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption levels. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning of a car is still considered a luxury. चिल्ड्रन पॉवर्टी लाइन को सभी देशों के हिसाब से अलग अलग तरह से मेज़र किया जाता है और हर देश का अपना एक उन्होंने इमेजिनरी लाइन बना ली है और उस मिनिमम लेवल उन्होंने बना लिया और वो मिनिमम लेवल किसी भी देश की गरीबी को मेजर करता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हैं, अमेरिका वगैरह है, वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो उसे गरीब माना जाएगा, लेकिन हमारा भारत अभी भी यदि किसी व्यक्ति के पास कार है तो उसे लग्जरी लाइफ जीने वाला माना जाएगा। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement, etc. are determined for substances. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex and the type of work that a person does. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calorie per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirements in rural areas are considered to be higher than in urban areas. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grains etc. is revised periodically taking into consideration the rise in prices. तो चिल्ड्रन हमारे भारत में जो मिनिमम लेवल है वो है फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ों यदि किसी व्यक्ति के पास हैं, ये सारी चीज़ों की यदि वो पूर्ति कर पा रहा है तो फिर वो गरीब नहीं है। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमारे यहाँ मेज़र करने के लिए रखा गया है कि इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो प्राइजेस होती हैं उनको रुपीज़ में मेज़र कर लिया जाता है और उसके बाद यह निकाला जाता है कि किस व्यक्ति की जो आय है वह इन आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है। भारत में पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने के लिए कैलोरी से का मापन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है, सीरियल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, मिल्क है, इन सारी चीज़ों से जो कैलोरी मिलती है उन कैलोरीज को यदि वो अपनी एज और अपने एरिया के हिसाब से यदि वो अडॉप्ट कर पा रहा है, ले पा रहा है तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के अंडर में नहीं आएगा और यदि नहीं ले पा रहा है तो आएगा। जैसे कि हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे भारत में रूरल एरियाज़ में पर पर्सन पर डे के हिसाब से 2400 कैलोरी को रखा गया है कि यदि रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन ले पा रहा है और अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे यदि वो ले पा रहा है तो वह पॉवर्टी लाइन के अंदर में नहीं है और इससे कम जो ले रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन के अंदर में आते हैं। रूरल एरियाज़ में फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, इसलिए वहाँ पर जो मात्रा है कैलोरी की वो ज़्यादा रखी गई है 2400 कैलोरी। और अर्बन एरियाज़ में वही फिज़िकल वर्क थोड़ा कम हो जाता है तो यहाँ पर जो मात्रा रखी गई है वो 2100 कैलोरी रखी गई है। Now,
poverty estimates. It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 93 to 95 to 37.2% in 2004 to 5. The proportion of people below poverty line further came down to about 22% in 2011 to 12. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. Although the percent of the people living under poverty declined in the earlier two decades, 1973 to 1993, the number of poor declined from 407 million in 2004 to 5 to 270 million in 2011 to 12, with an average annual decline of 2.2 percent points during 2004 to 5 to 2011 to 12. ये जो टेबल है इससे हमें समझ में आएगा 1993 टू 1994 में जो पावर्टी रेशियो था वो रूरल एरियाज़ में 507 था और अर्बन एरियाज़ में 32. टोटल कितना था 45. अब नंबर ऑफ पुअर्स जो थे वो कितने थे, रूरल एरियाज़ में 329 और अर्बन एरियाज़ में 75. तो दोनों को मिला करके 404 मिलियन पीपल पावर्टी लाइन के अंदर में आते थे. नाउ 2004 टू 2005 में देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में पावर्टी रेशियो जो था वो 42 था रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में 26% था और दोनों को मिला करके 37% था. और नंबर ऑफ पुअर पीपल में देखा जाए तो 326 जो रूरल एरियाज़ में थे मिलियन पीपल थे और अर्बन एरियाज़ में 81 मिलियन पीपल थे. टोटल मिला करके 407 मिलियन पीपल जो थे वो गरीबी रेखा के अंतर में आ रहे थे, जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे. और इसी कड़ी में देखा जाए तो 2011 और 12 में रूरल एरियाज़ में जो परसेंटेज था पावर्टी रेशियो वो 26% था और अर्बन एरियाज़ में 14%. टोटल ये हो गया 22%, जो कि कम हो गया. और उसके बाद अगले 5 सालों में ये जो पीपल थे ये 20% कुछ गरीबी रेखा के और कम हो गए. ये जो टेबल है ये आपको क्वेश्चंस है, लेट्स डिस्कस, इससे ज़्यादा इजीली समझ में आएगी. इस टेबल को स्टडी करें और बताएं कि आर द डायनेमिक्स ऑफ पावर्टी रिडक्शन द सेम इन रूरल एंड अर्बन इंडिया. अब देखते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स. The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe household. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable group are the rural agricultural labor household and the urban casual labor household. Graph 3.1 shows the percentage of poor people in all these ग्रुप्स. अब ये असुरक्षित ग्रुप्स को हम देखें तो जो प्रपोर्शन है पावर्टी लाइन का यह भी सेम नहीं है लोगों के बीच में. जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो इकोनॉमिक कैटेगरीज़ के अंदर में उनको रखा गया है वो सेम नहीं है. जो असुरक्षित ग्रुप हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ज़्यादा हैं. और इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रुप में देखा जाए तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप जो है वो रूरल एग्रीकल्चर लेबर है. इकोनॉमिक कैटेगरी देखें तो शेड्यूल ट्राइब की 43 आ रही है और वहीं शेड्यूल कास्ट की 29%. एवरेज इंडियन पावर्टी रेशियो देखा जाए तो वह 22% है. कैजुअल लेबर जो है रूरल एरियाज़ में 34% है और अर्बन एरियाज़ में 34% है, लेकिन ये नॉन फार्मिंग है. Apart from these social groups, there is also inequality of incomes within a family. In poor families, all suffer, but some suffer more than others. In some cases, women, elderly people, and female infants are denied equal access to resources available to the family. ये सारी चीज़ों को के साथ साथ और भी इनइक्वालिटी है जो कि एक फैमिली में ही देखने को मिलती है. जैसे कि पुअर फैमिलीज़ में फैमिली के सभी मेंबर्स सफ़र करते हैं. जो बुज़ुर्ग हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, वीमेन हैं वो भी काम करने यदि नहीं जा रही हैं, एल्डर पीपल हैं और ये सारे हैं, तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल रिसोर्स नहीं दिए जाते हैं. तो ये भी एक प्रकार की पार्शियलिटी वाली गरीबी हुई कि उनके साथ पार्शियलिटी की जाती है.